ये पूरा नहीं हो सर। So today I am going to have the fourth series of lecture on immunoassay. The specific learning outcome will be the same, that at the end of this lecture, the students will be able to briefly outline immunoassay techniques and describe their application. Now, a brief review of what we have discussed. In the first lecture, we discussed basics about the immunoassays, their classification, then followed by immunodiffusion technique, including radioimmunodiffusion. Then we had talk on immunoelectrophoresis, immunofixation, immunoturbidimetry, including turbidimetry and nephelometry techniques. ये फौजी भी अब लेट आते हैं सुंबल, क्या ख्याल है आपका? फौजी क्यों लेट आते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, आज बस रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा थी तो। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। लाहौर में गर्मी भी बहुत हो गई है ना। जी सर। And in the very previous lecture, we discussed about different enzyme immunoassay, and in that context, I discussed heterogeneous enzyme immunoassay, and for that we discussed very briefly about the ELISA technique. Now, my next talk was related to the homogeneous enzyme immunoassay. A very brief recall of the subject, that enzyme immunoassay basically cater for the different properties of the enzymes. So the properties which are used in homogeneous immunoassays, which are commonly used, take care of two common properties. One is that the enzyme basically consists of different fragments, and whenever these fragments are basically inactive, and then when these fragments combine, they will result in the production of active enzyme. Second, as we know that, and the basic characteristics of the enzyme is that whenever the enzyme has a specific site for binding of substrates, so whenever the substrates bind to that specific site of the enzyme, that substrate, if the enzyme is specific for that substrate will be converted into the product, and if the product is a colored substance, we will have a colored compound, and from that we can interpret the concentration of our analyte of interest. And this context, we discussed about the enzyme multiplied immunoassay, and in that I discussed about this technique, that this is the technique which is used in therapeutic drug monitoring, and it is a screening procedure for drug of abuse and their metabolites in the urine, also for the immunosuppressant drugs. But it is a less sensitive technique than ELISA in hormone measurement. So it is not routinely done for the hormone measurements. And one thing I have forgotten to tell you, that there are the certain instruments which are basically based on this technique. One is Viva E instrument by the Siemens, and the Cobas Mira for the by the Roche, and these are the instruments which are designed entirely for this particular technique. So we discussed this technique, and we cater for the substrate portion of the enzyme, that whenever the enzyme has the substrate with it and there is an antibody binding it. I have discussed it in a very detail previously. So we will now go for the next technique. This technique is very, very important
and it is basically called as CEDIA. CEDIA is cloned enzyme donor immunoassay. So actually, I want to tell you that in medical technology, engineering technology, we cater for certain substances. These and most important of these are the bacteria, and these bacteria are used to design and develop certain techniques. So CEDIA is based upon one of those genetic engineering technique. And it is a technique which is very commonly used in automation. It can be done on urine, semen, serum, plasma, and oral fluids. Although there is no specific equipment or instrument which is based on CEDIA, but there are the certain kits which are available on this principle. And these are from Abbott, Olympus, and Thermo Fisher Scientific. These are the companies which are supplying the kits for the CEDIA for different analytes. Now, what are the uses of CEDIA? It is basically used for the screening of drug of abuse, therapeutic drug monitoring, immunosuppressant drug monitoring, toxicology testing. So let's have, what is this technique? We know that there is an enzyme which is known as a beta-galactosidase. This beta-galactosidase is a hydrolytic enzyme that acts upon the beta-galactoside and then convert it into its fragments. So the most important thing is that there are the certain compounds which contain beta-galactoside, and these compounds include galactose, and we know that the lactose contains this galactoside in its galactose in its constituent. So basically, this beta-galactosidase has a two discussed that it has two parts. One is the enzyme acceptor, and other is the enzyme donor. And when these different parts are separate, they are the basically inactive fragments. So genetic engineering had made a use that we we produce these two fragments by the manipulation of a gene of E. coli bacteria. That is, these two enzymes, portion of an enzyme beta-galactosidase, that is the enzyme acceptor, and the enzyme donor, they are basically inactive fragments, and these two inactive fragments, they have been produced by genetic engineering using making use of genes of E. coli, a specific portion of E. coli. Now, these two portions, when they are separate, they are in the inactive form. But when these fragments combined, they result in the production of active of this ideas. Finally, किसी का माइक ऑन है किसी का जी, इसी वजह से शोर बहुत ज्यादा हो रहा है. So these two inactive fragments of beta-galactosidase enzyme, that is our enzyme acceptor and enzyme donor, when they are separate, they are inactive, and when they combine, they result in the production of an active fragment. So this technique has made use of this fact of beta-galactosidase enzyme. Now we will see how this technique made uses of this enzyme. Suppose, as usual, this is our analyte of interest, and it is combined with an enzyme donor. So this is known as the enzyme donor ligand conjugate. एंजाइम डोनर लाइगेंड कंजुगेट, ये आपकी बुक्स में जो है ना वो EDLC के नाम से जो है वो ED-LC के नाम से जो होगा. तो इसका मतलब है कि दिस इज एंजाइम डोनर लाइगेंड कंजुगेट, यानी कि ऐसा हमारा एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट जो कि एंजाइम डोनर, जो कि हमने कहा था कि दैट इज inactive, one of the inactive fragment of beta-galactosidase enzyme. So when this combines with its specific antibody, we will see that this antibody will bind over an analyte of interest
and this will prevent the excess of enzyme donor for its binding to the enzyme acceptor fluid. हमने कहा था कि जी एंजाइम डोनर एंजाइम एक्सेप्टर जब आपस में मिलते हैं तो उसके बाद जो है वो एक एक्टिव एंजाइम प्रोड्यूस होता है, लेकिन इसमें जब हमारा एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट जब एंजाइम डोनर के साथ कंबाइन होता है और वो जब स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ मिलता है तो एंटीबॉडी इस तरीके से एंजाइम डोनर के साथ मिलता है और अपने एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कि वो एंजाइम डोनर जो है वो अपने एंजाइम एक्सेप्टर के साथ नहीं मिल सकता, ठीक है, जिसकी वजह से एंजाइम जो है वो इट इज नॉट एक्टिवेटेड, सो देयर इज लेस और नो एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है जी। यानी हमने कहा कि दो फ्रेगमेंट्स हैं, एक्टिव फ्रेगमेंट और इनएक्टिव फ्रेगमेंट, और दो फ्रेगमेंट है दोनों इनएक्टिव हैं। जब दोनों इनएक्टिव फ्रेगमेंट एंजाइम डोनर और एंजाइम एक्सेप्टर मिलते हैं तो एक्टिव एंजाइम होता है। हमें किया ये कि इस फिनोमेना को हमने इस्तेमाल किया, हमने अपने एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट जो कि हमारा ब्लू था इसको हमने टैग कर दिया एंजाइम डोनर के साथ और इसको हमने अलाउ किया कि ये स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ कंबाइन करे। जब ये स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ कंबाइन हुआ तो उस एंटीबॉडी ने एंजाइम डोनर की एक्सेस एंजाइम एक्सेप्टर के लिए जो है वो उसको ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से एंजाइम डोनर एंजाइम एक्सेप्टर के साथ नहीं मिल सका, जिसकी वजह से एंजाइम एक्टिव नहीं हो सका, ठीक है जी। अब हम अपना फ्री एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट, ये मैं बार बार मैं बताना चाहता हूं कि हमने सिर्फ कलर कोडिंग चेंज की है। ये रेड और ब्लू दे आर द सेम एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट। जो ब्लू वाला है उसको हमने डिफरेंशिएट करने के लिए हमने उसको टैग चूंकि किया है एंजाइम डोनर के साथ, तो मैंने इसका कलर चेंज कर दिया है। कलर से काइंडली ये ना कीजिएगा ये डिफरेंट एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट है, ये एक ही एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट है। सपोज ये कोई एक ड्रग है, तो जब ये डोनर के साथ कंबाइन होती है तो उसको मैंने ब्लू कलर से कर दिया, और जब ये फ्री होती है तो उसको मैंने रेड के साथ किया है। एक्चुअली ये सेम ड्रग है। जब ये इस एंटीबॉडी के साथ कंबाइन होगी तो इट विल डू लाइक दिस, ठीक है जी। अब ये एंटीबॉडी की एक्सेस नहीं है उस एंजाइम डोनर और एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, ठीक है जी। तो उससे होगा ये कि सपोज हम कहते हैं कि एक एंटीबॉडी है हमारे पास और उसमें फ्री एनालाइट भी है और एंजाइम डोनर जो कि टैग है अपने हमारे एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। तो अब ये एंटीबॉडी हम मिसाल करते हैं ये फ्री एनालाइट के साथ मिल जाती है, तो अब जो एंजाइम डोनर के साथ जो हमारा एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट है, अब उसके साथ चूंकि एंटीबॉडी कंबाइन नहीं है तो उसको एक एक्सेस मिल गई कि वो एंजाइम एक्सेप्टर के साथ मिल जाए, ठीक है जी। आई थिंक इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जी सर। कम्पिटिटिव की मैं आगे बात करूंगा सर, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि जब एंटीबॉडी हमारे फ्री एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मिलती है और वो एंटीबॉडी जब हमारे उस एनालाइट के साथ जो एंजाइम डोनर के साथ कंबाइंड है उसके साथ नहीं कंबाइन करती, तो वो एंजाइम डोनर हैज द फ्री एक्सेस टू बाइंड विद द एक्सेप्टर। और ये दो बीटा ग्लाइकोसाइडेज की दो पोर्शन है जी सर, ये दो पोर्शन जी सर, डोनर एक्सेप्टर सर। एक्चुअली और भी बहुत सारे एंजाइम अवेलेबल हैं, लेकिन जो सीडिया अमीनो एसिड में जो है वो बीटा ग्लाइकोसाइडेज के दो इनएक्टिव फ्रेगमेंट एंजाइम डोनर और एंजाइम एक्सेप्टर जो यूज किए गए हैं। और मैंने बताया कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो है ना हमने ई कोलाई से जो है इन विट्रो हम इसकी जो है ना प्रोडक्शन करते हैं। तो अब हम देखते हैं, ठीक है, तो इट विल बी एन एक्टिव एंजाइम। अब हम एक सिनेरियो देखते हैं कि जिसमें हमारा लेट्स सपोज के फ्री एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट इज +3 और हमारा एंजाइम डोनर जो है जो कि टैग है हमारे एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट के साथ वो 1+ है। और नाउ दीज विल हैव अ कंपटीशन फॉर बाइंडिंग विद द लिमिटेड नंबर ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है जी। अब चूंकि इसमें फ्री एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट हमारी उसकी कंसंट्रेशन 3 गुना है एज कंपेयर टू द टैग एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट, सो वी विल सी कि ये एंटीबॉडीज जो हैं वो ज्यादा जो है वो इसके साथ कंबाइन हो जाएगी और लेस विल बी अवेलेबल फॉर कंबाइनिंग विद द एंटीबॉडी। सो जितनी ज्यादा एंटीबॉडीज के साथ कंबाइन हो जाएंगी उतनी कम एंटीबॉडीज अवेलेबल होंगी कि वो कंबाइन कर सके एंजाइम डोनर के साथ। सो एंजाइम डोनर विल बी फ्री। अब उसको फ्री होगा कि वो एक्सेप्टर के साथ अपने दोस्त के साथ मिल जाए। एक्चुअली ये दो दोस्तों की कहानी है, ठीक है जी। और हमने ये देखना है कि एक कौन सी ऐसी चीज है, जालिम समाज है जो दो दोस्तों को मिलने नहीं देता। तो एंटीबॉडी जो है वो जालिम समाज का है,
ठीक है जी, जब एंटीबॉडी हमारे एंजाइम डोनर के साथ मिल जाते हैं तो वो अपने दोस्त के साथ नहीं मिल सकता, लेकिन जब वो जालिम समाज को कोई वालिद साहब या कोई और चीज जो है वो उसको पकड़ लेते हैं, ठीक है जी, तो वो जालिम समाज विच इज एंटीबॉडी, वो चूंकि उस दोस्त के साथ नहीं मिल सकते तो दोनों दोस्त आपस में मिल जाते हैं। जब दोनों दोस्त मिल जाते हैं तो वो अशाश बेशाश होते हैं, तो इट विल रिजल्ट इन एंजाइम एक्टिविटी। सो जी 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 कि जो एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट है जी, उससे पहले प्रायोरिटी चांस दिया जाएगा कि वो मैक्सिमम एंटीबॉडीज ऑक्यूपाई करेगा। मैडम वो या नहीं, जी जी, क्वेश्चन ये है कि या ये है कि दे विल हैव अ फ्री कंपटीशन, दे विल हैव अ फ्री कंपटीशन। फ्री कंपटीशन में तो फिर ये भी चांसेस है कि जो वो लिगैंड बाउंड एनालाइट है वो ऑक्यूपाई कर जाए और कम हमारे जो एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मैंने आपको बताया था, इनकी ऑप्टिमम कंसंट्रेशन को कैटर फॉर करते हैं। और दूसरा इसमें ये होता है कि वो लिमिटेड नंबर ऑफ स्लॉट्स होती हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ स्लॉट्स होती हैं, और इनकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है उन स्लॉट्स के लिए वो इक्वल होती है। डेफिनेटली अगर वो 3 है फ्री एनालाइट और वो एंजाइम डोनर जो टैग है वो 1 है, और स्लॉट हमारे पास मिसाल के तौर पर 4 है, एक मतलब 5 है जो भी है, तो वो जो ज्यादा मैक्सिमम स्लॉट्स हैं वो फ्री एनालाइट जो है वो ऑक्यूपाई करेगा। और जो बाकी वेरी इंपॉर्टेंट दैट द नंबर ऑफ and slots should be site is limited. That is very important. क्वेश्चन ये है कि जी कि इसमें ये भी तो हो सकता है कि जी इस कंपटीशन में जो है वो एंजाइम डोनर जो है वो ज्यादा साइट्स ऑक्यूपाई कर दे, तो ये ऐसा नहीं है। इन दोनों की एक ऐसी ऑप्टिमम कंसंट्रेशन रखी जाती है कि जिसमें टोटल लिमिटेड नंबर ऑफ एंटीबॉडी स्लॉट्स लिमिटेड होती हैं। तो ये उसी तरह ही है जिस तरह वो म्यूजिकल चेयर होते हैं कि मतलब जितने एक्टिव लोग होंगे वो उन कुर्सियों पे बैठ जाएंगे, और जो एक्टिव नहीं होंगे वो बाहर रह जाएंगे। और मैंने आपको बताया था दिस इज अ होमोजेनियस ऐसे, ठीक है ना, इसमें वो जो बाइंड नहीं होते वो खुद ब खुद जो है वो निकल जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली अ हेल्दी कॉम्पिटिटिव अमीनो एसिड बिटवीन द टू। सो मैं इसको बिल्कुल एक ब्रीफ सा बताऊंगा कि वी हैव फ्री एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट एंड एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट व्हिच इज टैग्ड विद एंजाइम डोनर। An enzyme donor normally has a capability to combine with the enzyme acceptor to have an enzyme activity. They will have a competition for binding to limited number of antibody binding sites. In this case, we have seen that the free analyte concentration is more as compared to the tagged over analyte of interest. So more of the free analyte will bind with the antibody, and this antibody will not have the access to bind with the enzyme donor tagged analyte. So enzyme donor will have the choice to combine with the enzyme acceptor, and this will result in the increased enzyme activity. और मैंने ये बताया था कि ये वो homogeneous competitive amino acid है कि जिसमें enzyme activity is directly proportional to the concentration of our analyte of interest. Normally हमने देखा था कि competitive amino acid में जो enzyme activity है that is inversely proportional to the our analyte of interest. लेकिन ये EMIT यानी enzyme mediated amino acid technique और CDR यानी cloned enzyme donor amino acid, ये दो ऐसी टेक्निक्स हैं कि जिसमें हमारी एंजाइम एक्टिविटी जो है वो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ आवर एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट। आई होप आई हैव मेड द थिंग्स क्लियर। नहीं डायरेक्टली जी सर, इसमें डायरेक्टली ये जो कुछ भी मैंने बोला इसको मैंने लिख दी। नो सर नहीं जी सर, इसी तरह ये नहीं इट इज सर ये इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि ये बेसिकली एनालाइट का प्रेजेंट होना जो है ना वो उसको हटा देता है। ये जो तो वही कह रहा हूं ना, जितनी ज्यादा एंजाइम एक्टिविटी होगी उतना ही ज्यादा हमारा एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट होगा, यानी उतनी एंटीबॉडी एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट ने ऑक्यूपाई कर ली है। और जो लिगैंड बाउंड एनालाइट है वो इज फ्री। अगर वो एंटीबॉडी से बाउंड कर देगा तो जी सर एंजाइम को कंप्लीट नहीं होने देगा। ये काइंडली इसको समझ लें, क्योंकि ये मैंने टीज में देखा है, टीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है और मैंने और भी बुक्स में देखा है, तो ये बहुत सारी चीजों को मैंने समझ के इसको खुद डिजाइन किया है। तो काइंडली इसको आप एक दफा जरा देख लीजिए। तो ये सारा जो मैंने बोला है, नो अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड आई विल लाइक कि आप इसके ऊपर थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, क्योंकि इसको मुझे भी समझने में जो है ना वो काफी मुश्किल पेश आई थी। बहुत कॉमन यूज। हाँ जी, कॉमन यूज।
chemiluminescence is a type of technique which make use of light emission produced during a chemical reaction. And the emission of light, हमने पढ़ा हुआ है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जब जाता है तो वो अपनी लाइट को जो है वो एमिट करता है. और इसमें जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन होती है और हम बहुत सारे केमिल्यूमिनेसेंट सब्सटेंसेस की ऑक्सीडेशन होती है. ये केमिल्यूमिनेसेंट सब्सटेंसेस जो यूज होते हैं वो ल्यूमिनॉल, आइसोल्यूमिनॉल, एक्रिडियम और डिफरेंट टाइप के जो होते हैं. ठीक है, ये हम सारा बहुत डिटेल में केमिल्यूमिनेसेंस में पढ़ चुके हैं, इसलिए सो आई विल नॉट गो इनटू डिटेल. एंड द लाइट इमिटेड is measured as a result of this oxidation process. So ये बहुत आसान सी एक चीज थी जो कि हमने पढ़ी थी. Now let's make it some difficult one. There is a technique which is written in your book that is called LOCI, that the luminescent oxygen channeling immunoassay. Actually this technique was first used in 1986. और ये हार्मोन्स के लिए यूज की गई, लेकिन उसके बाद जो है वो आई डोंट नो लिटरेचर में मैंने काफी सर्च किया, उसके बाद ये टेक्निक मुझे नजर नहीं आई. उसके बाद इन अर्ली 2000 और उसके बाद 2010 और 12 में फिर इसकी यूटिलिटी जो है वो ज्यादा होती गई. आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन, मुझे कोई खास नजर नहीं आया. लेकिन लेट्स सी व्हाट इज दिस टेक्निक. इट इज अ टेक्निक व्हिच इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम केमिल्यूमिनेसेंस. ये किस तरह है रूटीन केमिल्यूमिनेसेंस है, आई विल लेट यू नो. अच्छा, ये वो टेक्निक है, मैंने जब आपको क्लासिफिकेशन बताई थी तो मैंने बताया था कि जो कॉमन टेक्निक्स हैं वो हेट्रोजीनियस कॉम्पिटिटिव इम्यूनोएसे हैं, होमोजीनियस कॉम्पिटिटिव इम्यूनोएसे हैं. सो ये मेरे ख्याल मुझे लिटरेचर में 2 या 3 टेक्निक्स ऐसी मिली हैं कि जो कि होमोजीनियस नॉन कॉम्पिटिटिव इम्यूनो एसे है. और मैंने आपको बताया था कि द टेक्निक्स विच आर बेस्ड ऑन होमोजीनियस नॉन कॉम्पिटिटिव इम्यूनो एसिड दे हैव अ वेरी हाई सेंसिटिविटी एंड स्पेसिसिटी. अब हम देखेंगे कि ये LOCI में ये हम सेंसिटिविटी किस तरह इसकी इंक्रीज है. ये मतलब बड़ा एक टेक्निकल चीज है जिसको हम अभी पढ़ने के लिए जा रहे हैं. दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन ऑक्सीजन चैनलिंग टेक्नोलॉजी. हम इसको देखेंगे कि ये क्या टेक्नोलॉजी होती है. It is used in the same, that is for drugs, DNA, immunoglobulins, hormones. It is used for pharmaceutical industry, drug discovery, biotechnology industries. इन तमाम में इस टेक्निक को जो है वो यूज किया जाता है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसमें ये यूज होती है, दैट इज फॉर द कोगुलेशन एसे. कोगुलेशन एसे जो है मेनली जो ऑटोमेटेड होते हैं वो 2 टेक्निक्स पे ज्यादा काम करते हैं. एक टर्बिडिटी टेक्निक पे होता है, दूसरा LOCI, ल्यूमिनेसेंट ऑक्सीजन चैनल इम्यूनोएसे. तो आप जितने भी आर्टिकल्स उठाएंगे 80% आर्टिकल जो हैं वो बताएंगे कि ये टेक्निक जो है वो कोगुलेशन एसे के लिए यूज होती है. इस टेक्निक की मैंने बताया था कि सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, स्पेसिसिटी बहुत ज्यादा है, हाई थ्रूपुट है, इसमें वेरी स्मॉल वॉल्यूम चाहिए, बायोलॉजिकल मैट्रिक्स इफेक्ट्स बहुत है. और एक और खूबसूरती इस टेक्निक की है कि जितने भी आपके स्टेरिक सैंपल हैं, लाइपेमिक सैंपल हैं और हिमोलिटिक सैंपल हैं, उनके लिए भी जो है ये टेक्निक जो है वो यूज हो सकती है. सो इस टेक्निक की खूबसूरती ये है कि इसमें बहुत कम सैंपल वॉल्यूम चाहिए होता है, इसका थ्रू पुट बहुत ज्यादा है, इसमें लाइपेमिक, एक्टेरिक और हिमोलाइज सैंपल सारे यूज होते हैं. इट इज वेरी मच इन फॉर ऑटोमेशन टेक्निक. नाउ लेट्स सी, मैंने जब इतनी इसकी खूबसूरती बयान की है तो सी के ये कितना खूबसूरत. अच्छा, नॉर्मली हमने जितने भी अभी तक अमीनो एसिड्स पढ़े हैं, हमने उसमें देखा है कि इसमें एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन होता है. एक और टाइप का रिएक्शन होता है जिसे हम कहते हैं नॉन इम्यून रिएक्शन. नॉन इम्यून रिएक्शन ये होता है कि कोई भी ऐसा रिएक्शन जो कि एंटीजन और एंटीबॉडी के दरमियान में ना हो, लेकिन वो किसी और 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान में हो. तो ये वो टेक्निक है कि जिसमें इट मेक्स यूज ऑफ बोथ एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन प्लस इट मेक्स यूज ऑफ नॉन इम्यून रिएक्शन. और इसमें अभी सिर्फ मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूं कि दिस टेक्निक मेक्स यूज ऑफ बायोटिन एंड स्ट्रेप्टोविडिन. मैं आपको बताता हूं कि ये क्या चीजें हैं. सो इट इज अ टेक्निक विच मेक्स यूज ऑफ बोथ इम्यून एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन एंड नॉन इम्यून रिएक्शन. और इन 2, चूंकि इस टेक्निक में दोनों ये
मतलब मेथड्स यूज होते हैं, सो इट हैज अ वेरी हाई सेंसिटिविटी और स्पेसिसिटी। मैं बताऊंगा कि ये क्यों, मतलब हम बायोटिन और स्टेप नॉन इम्यून रिएक्शन हम क्यों यूज कर रहे हैं, आगे हम चलते हैं। नो, एज यू नो, बायोटिन इज बेसिकली विटामिन एच और B7, और स्ट्रेप्टोबाइटिन इट इज कंपाउंड विच इज ड्राइव्ड प्रोटीन विच इज ड्राइव्ड फ्रॉम एक बैक्टीरिया होता है जिसे हम स्ट्रेप्टोमाइसिस कहते हैं, एविडेनाई। यहाँ से जो ये दो जो हमारे मॉलिक्यूल जो है वो होते हैं, एक बायोटिन और एक स्ट्रेप्टोबाइटिन। और लिटरेचर में आप देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि अभी तक इस नेचर में जो स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरैक्शन देखा गया है दो कंपाउंड्स के दरमियान में, वो स्ट्रेप्टोबाइटिन और बायोटिन के दरमियान में है, ठीक है। और मैं आपको ये बताऊं कि वो कोई भी ऐसा रिएक्शन कि जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी की इंटरैक्शन एक दूसरे के लिए बहुत स्ट्रांग हो, उतना ही वो रिएक्शन जो है वो सेंसिटिव और स्पेसिफिक होता है। और हमने एक ऐसा नॉन इम्यून रिएक्शन भी देखा है कि जिसमें जब दो कंपाउंड के दरमियान स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन होता है, तो ये दोनों चीजें जब कंबाइन हो जाती हैं तो इट इंक्रीजेस द सेंसिटिविटी एंड स्पेसिसिटी। बट द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स कि ये क्यों हम यूज करते हैं। वी विल सी इट। वही मैंने आपको बताया कि इसकी यूटिलिटी बहुत सारी जगहों पे है। नाउ आवर क्वेश्चन इज हाउ इट इंक्रीजेस द सेंसिटिविटी ऑफ एन एसे। एक्चुअली होता यह है कि मैंने आपको जब लाइगेंड के बारे में बताया था, तो लाइगेंड लगाने का मकसद ये होता है कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स या कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं कि जो कि हम जिनका रिएक्शन हम अपनी नेकेड आई से नहीं दे सकते, जैसे प्रेसिपिटेशन और एग्लूटिनेशन टेक्निक है। और वो मॉलिक्यूल या तो बहुत स्मॉल होते हैं या वो बहुत स्मॉल कंसंट्रेशन में होते हैं। लेकिन जब हम उनको लाइगेंड के साथ, जब उनको किसी हम लेबल के साथ कंबाइन कर देते हैं, तो उसकी वजह से उनकी डिटेक्शन जो है वो इजी हो जाती है। सो हमने ये देखा था कि जब हम कंबाइन हम बायोटिन और स्ट्रेप्टोबाइटिन की इंटरेक्शन करते हैं। मैं फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जो ल्यूमिनेसेंट ऑक्सीजन चैनल अमीनो एसिड है, ये एक ऐसी केमिल्यूमिनेसेंस टेक्निक है कि जिसमें हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को और नॉन इम्यून रिएक्शन दोनों को जो है ना इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारा ये जो सेंसिटिविटी है इस रिएक्शन की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो हमने ये देखा कि जब हमने किसी भी मॉलिक्यूल को हमने डिटेक्ट करना हो तो हम उसको किसी भी चीज के साथ लेबल कर देते हैं, यानी कि एंजाइम के साथ लेबल कर देते हैं, किसी फ्लोरोफोर के साथ लेबल कर देते हैं। उससे उसकी डिटेक्शन जो है वो इजी हो जाती है। तो इसका मतलब है कि अगर हम इस मॉलिक्यूल की सेंसिटिविटी को बढ़ाना चाहें तो हम उस मॉलिक्यूल पर बहुत सारे लेबल मॉलिक्यूल लगा दें, जिसकी वजह से उसकी डिटेक्शन जो है वो इजी हो जाएगी। लेकिन जब हम एक मिसाल के तौर पर एंटीजन है या एंटीबॉडी है, उसके ऊपर बहुत सारे लेबल मॉलिक्यूल लगा दें, तो उसकी वजह से उसकी इम्यूनो रिएक्टिविटी यानी कि उसकी जो इंटरेक्शन है एंटीजन एंटीबॉडी के साथ, वो उसका प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसमें हम करते ये हैं कि हम जो हमारा एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट है उसके साथ हम एक कैरियर मॉलिक्यूल को लगा देते हैं, ठीक है जी। जिस तरह हमने पिछले देखा था कि हम हेप्टेन के साथ एक एल्ब्यूमिन को हमने अटैच कर दिया था, और उस कैरियर मॉलिक्यूल पे हम बहुत सारे लेबल लगाते हैं। ये भी अगर पॉसिबल नहीं है तो हम किसी भी रिएक्शन की सेंसिटिविटी को, मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेप्टोबाइटिन और बायोटिन की इंटरेक्शन को जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि इसमें अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कि why there is loss of immunity? सर उसमें जी सर उसमें ये साइट्स, क्योंकि उसमें एक्चुअली होता ये है कि इसमें हम उसकी जो एफएबी फ्रेगमेंट के ऊपर हम नहीं लगा सकते, हम एफसी फ्रेगमेंट पे लगाते हैं जो लेबल है। लेकिन एफसी फ्रेगमेंट की भी जो साइट जो है वो लाखों में नहीं होती, लिमिटेड होती है। तो अल्टीमेटली हमें उसको एफएबी साइट को यूज करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसमें हम ये करते हैं कि हम फिर बायोटिन और स्ट्रेप्टोबाइटिन इंटरेक्शन को करते हैं। और बायोटिन की खूबसूरती ये है जो कि उन्होंने किया है कि ये इतना छोटा मॉलिक्यूल होता है कि ये एंटीबॉडी के साथ जो उसके एफसी फ्रेगमेंट होते हैं वहां पे बहुत सारे मॉलिक्यूल जाके अटैच हो जाते हैं, ठीक है ना। जो नॉर्मल हमारे एंटीजन है वो जब एफसी फ्रेगमेंट पे जाके अटैच होते हैं तो उनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, तो वो बहुत जल्दी एफसी फ्रेगमेंट को ऑक्यूपाई कर देते हैं। लेकिन बायोटिन का
को जो कमर्शियली अवेलेबल है वो उनका साइज इतना छोटा होता है कि वो बहुत सारे एफसी फ्रेगमेंट के ऊपर जाके लग जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो है वो सेंसिटिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। स्ट्रेप्टोवाइटिन दूसरी सर वो आगे ठीक है जी। सो हम ये करते हैं कि हम इस एंटीबॉडी को हम लेबल करते हैं बहुत सारे बायोटिन मॉलिक्यूल्स के साथ। सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी we can attach a label on the our analyte of interest, but attaching number of label molecules onto the detecting antigen and antibody will result in the loss of immunoreactivity of that antigen and antibody, and this problem is solved by attaching a carrier molecule on which we can attach as many number of labels as we can, or we can जो simple सी चीज है कि we can have attached biotin on antibody, and the biotin is so small molecule and the commercially available biotin is such a small molecule that it can be easily attached. Numerous molecules can be attached on the Fc fragment of the antibody, and this will result in increase in sensitivity. अब हम देखते हैं कि actually इस टेक्निक को हम, ये एक बेसिक जो इसका प्रीफेस था या इसका एक बैकग्राउंड था जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था। Now let's see कि how this technique is used. इसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। जो ल्यूमिनेसेंट ऑक्सीजन चैनल अमीनो एसिड है, ये इसमें दो किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं। मैंने आपको बताया था ये रूटीन केमिल्यूमिनेसेंस से डिफरेंट है। एक मॉलिक्यूल को हम कहते हैं डोनर, जो कि सेंसिटाइजर या फोटो सेंसिटिव होता है। फोटो सेंसिटिव मीन के ऐसा मॉलिक्यूल जो कि लाइट से सेंसिटिव होता है। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं वो जब धूप में निकलते हैं तो उनकी स्किन जो है वो खराब हो जाती है, तो हम उनको कहते हैं कि जी ये फोटो सेंसिटिव है, कि जी ये लाइट से जो है ना, ठीक। तो इसको मैं बताऊंगा डोनर क्यों कहते हैं। लेट्स सी के दो मॉलिक्यूल कौन से हैं। दूसरा है केमिल्यूमिनेसेंट मॉलिक्यूल, ठीक है ना, ये एक्सेप्टर है। केमिल्यूमिनेसेंट वो मॉलिक्यूल होता है कि जिसमें केमिल्यूमिनेसेंस रिएक्शन होता है। सो बेसिकली मैं LOCIE यूज करूंगा क्योंकि नाम बहुत बड़ा है, तो इसका लोकाई है। इसमें दो मॉलिक्यूल होते हैं, एक को हम डोनर कहते हैं, एक को एक्सेप्टर कहते हैं। डोनर इज सेंसिटाइजर एंड एक्सेप्टर इज केमिल्यूमिनेसेंट। अब इसके नाम से जाहिर है कि फोटोसेंसिटिव का मतलब है कि ऐसा मॉलिक्यूल जो कि लाइट से सेंसिटिव है, और केमिल्यूमिनेसेंट वो है कि जिसमें एक केमिल्यूमिनेसेंट रिएक्शन होता है। नाउ लेट्स सी कि हाउ वी मेक यूज ऑफ दीज टू मॉलिक्यूल्स। अच्छा, जो फोटोसेंसिटिव मॉलिक्यूल होता है इसके ये बेसिकली एक नाम है थैलोसाइनिन। ये मतलब ये बेसिकली ये मॉलिक्यूल होता है जो कि हम यूज करते हैं इसके अंदर। दिस इज अ सेंसिटाइजर और फोटोसेंसिटिव मॉलिक्यूल। और जो केमिल्यूमिनेसेंट जो इसके अंदर प्रोडक्ट होता है वो ऑल्फिन होता है। इनको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम बेसिकली देखेंगे कि ये रिएक्शन क्या होता है जो कि हम करते हैं, ठीक है जी। तो लोसाई जो है इट मेक्स यूज ऑफ टू मॉलिक्यूल्स, वन इज द photosensitive molecule and other is the chemiluminescent molecule. Photosensitive particle is the phthalocyanine and the chemiluminescent agent which is used is olefin. Now let's see. This is TSH is, I hope ये आपको नजर आ रहा है, TSH is our analyte of interest. हम इसको मेजर करना चाहते हैं। So इसको मेजर करने के लिए हम एक एंटीबॉडी लेते हैं। यहां पर मैंने एक एंटीबॉडी के साथ एक बायोटिन मॉलिक्यूल लगाया है ताकि आपको समझ में आ जाए। एक्चुअली इसके साथ और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है जी। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए कि हमारा एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बेसिकली हमारा एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट इज TSH, ठीक है जी। इसको हम मेजर करना चाह रहे हैं। इसके अगेंस्ट हम स्पेसिफिक एंटीबॉडी लेते हैं जो कि बायोटिन से टैग है। सो बायोटिन के साथ जब ये टैग हो गए तो इसकी वजह से इसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। So this is the basic reaction between TSH and biotin labeled antibody. ये एक बायोटिन नहीं एंटीबॉडी के साथ लगा होता है, ये बहुत सारे लगे होते हैं, लेकिन मैंने समझाने के लिए एक लगाया। नो अब हम लेते हैं जो हमने पीछे दो मॉलिक्यूल डिस्कस किए थे। ये एक हमारा वही मॉलिक्यूल डोनर मॉलिक्यूल, इसको हमने सिंपली एक और एंटीबॉडी विच इज एंटी TSH एंटीबॉडी, इसके साथ हमने लेबल किया, सिंपल एंटीबॉडी। सो अब हमने देखा कि ये हमारे पास एक सैंडविच टेक्निक आ गई, ठीक है जी। सैंडविच टेक्निक मीन दिस इज अ नॉन कॉम्पिटिटिव एसे, यानी हमारा एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट उसको हमने एक ऐसी स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो बायोटिन से लेबल है ताकि इसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज किया जाए, इसके साथ हमने लेबल किया
ये बेसिकली एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो गया, और ये हाईली सेंसिटिव रिएक्शन है बिकॉज इसमें बायोटिन जो है वो इस एंटीबॉडी पे लगी हुई है, और इसमें हमने जो सेंसिटाइजर पार्टिकल है, जो हमने कहा था डोनर पार्टिकल है, उसको हमने एंटीबॉडी के साथ टैग कर दिया, सिंपल एंटीबॉडी के साथ. नाउ आवर एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट TSH इज बिटवीन द टू एंटीबॉडीज. One is on the size of sensitizer particle, which is a simple antibody, and other is which is on the site of donor particle, ठीक है ना, which is labeled with biotin. अब ये हमारा डोनर पार्टिकल आ गया, which is tagged with streptovidin. ठीक है जी. तो अब इसमें हमने देखा है कि हमने दोनों चीजों को हमने कंबाइन किया, कि जिसमें हमने सेंसिटिविटी को इंक्रीज किया by the simple antigen antibody reaction and by the biotin and streptovidin reaction, जिसकी वजह से हमने इस रिएक्शन को जो है वो इसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी को इंक्रीज कर दिया. यहां तक अगर चीज समझ आ गई है तो हम आगे चलते हैं, क्योंकि आगे थोड़ा सा डिफिकल्ट है सब्जेक्ट. डोनर और एक्सेप्टर कौन सा सर? ये आगे चलते हैं. Our sensitizer particle is donor particle and our chemiluminescent particle is acceptor particle. अब वो क्या चीज डोनेट करता है और क्या चीज वो एक्सेप्ट करता है, हम इसको देखते हैं. ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि केमिल्यूमिनेसेंस से बहुत थोड़ी सी डिफरेंट है. केमिल्यूमिनेसेंस में हमने ये देखा था कि कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ लाइट हमें नहीं चाहिए, लेकिन दिस इज अ टेक्निक कि जिसमें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ लाइट हमें चाहिए. जी, तो अगर आपसे कोई पूछे कि जी केमिल्यूमिनेसेंस में कोई ऐसी टेक्निक है कि जिसमें हमें सोर्स ऑफ लाइट चाहिएगा, तो आप बताइए कि इसमें एक टेक्निक है जिसे हम लोसाई कहते हैं, ल्यूमिनेसेंट ऑक्सीजन चैनलिंग इम्यूनोएसिड. लोकी कहते हैं, लोकी कहते हैं. ठीक भाई, फूल को, गुलाब को जिस मर्जी नाम से बस समझना चाहिए कि गुलाब क्या होता है जी. ठीक है जी. तो यू कैन कॉल इट बाय एनी नेम. अब इसमें होता ये है कि एक सोर्स ऑफ लाइट, एंड बेसिकली क्योंकि टेक्निक बहुत सेंसिटिव है तो इसमें हम लेजर लाइट को लेते हैं. ठीक है जी. लेजर लाइट आगे मैं बताऊंगा कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, हम आगे उसको देखेंगे. सिर्फ हम अभी बेसिक रिएक्शन को समझते हैं कि एक सोर्स ऑफ लाइट, लेजर लाइट, इस सेंसिटाइजर पार्टिकल के ऊपर फॉल करती है. उसमें होता यह है कि इसके अंदर ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ दिस थैलोसाइनिन, जब लाइट इसके ऊपर फॉल करती है तो दिस ऑक्सीजन विच इज अ पार्ट ऑफ थैलोसाइनिन, ठीक है जी, वो कन्वर्ट हो जाती है सिंगलेट ऑक्सीजन में. ठीक है जी. सिंगलेट ऑक्सीजन वो होती है कि जिसके अंदर वो जो O2 वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, वो सिंपल O होता है और उसके साथ जो वैलेंसी जो है वो 2 जो है वो इस तरह होती है. यानी कि नॉर्मली ऑक्सीजन जो O2 होती है, सिंगलेट ऑक्सीजन ये होती है कि जिसमें ऑक्सीजन जो है वो O2 नहीं होती, सिंपल O होती है और उसके साथ उसको बैलेंस करने के लिए 2O. तो ये दिस इज 2O इज कॉल्ड सिंगलेट ऑक्सीजन. सो बेसिकली ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है कि जिसमें जब लाइट इस सेंसिटाइजर पार्टिकल के ऊपर फॉल करती है तो इन द प्रेजेंस ऑफ थैलोसाइनिन, जो कि सेंसिटाइजर पार्टिकल है, ऑक्सीजन जो कि इस पार्टिकल का हिस्सा है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू सिंगलेट ऑक्सीजन. अब दिस सिंगलेट ऑक्सीजन इज द बेसिक चीज जो कि ये कंपाउंड डोनेट करता है. ठीक है. ये सिंगलेट ऑक्सीजन यहां से निकलेगी और केमिल्यूमिनेसेंस पार्टिकल में चली जाएगी. अब कुछ चीजें यहां समझने वाली है कि अगर तो सिंगलेट ऑक्सीजन उस वक्त जब डोनर पार्टिकल में जाएगी जब इन दोनों के दरमियान में एक खास किस्म का ब्रिज होगा, और वो ब्रिज ऐसा होना चाहिए कि जिसमें उस ब्रिज की सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए. ठीक है जी. और जितने ज्यादा ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक होंगे और जितनी ज्यादा एंटीजन एंटीबॉडी बायोटिन और स्ट्रेप्टोवाइडिन इन दोनों मॉलिक्यूल के दरमियान में होगी, उतनी ही तेजी से सिंगलेट ऑक्सीजन जो है वो डोनर पार्टिकल से एक्सेप्टर पार्टिकल की तरफ जाएगी. मिसाल के तौर पर एक रिएक्शन है कि जिसमें ये सारा कुछ हो जाता है, लेकिन जो केमिल्यूमिनेसेंस जो डोनर और एक्सेप्टर पार्टिकल हैं वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से दूर हैं, या उन मतलब वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, एक ब्रिज नहीं बना हुआ. तो सिंगलेट ऑक्सीजन जब वहां डोनर से निकलेगी तो वो निकलते ही डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ बहुत थोड़ी होती है. तो सिंगलेट ऑक्सीजन को
डोनर पार्टिकल से एक्सेप्टर पार्टिकल में आने के लिए इन दोनों का नजदीकी होना बहुत जरूरी है, और नंबर ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी जो है वो उनका ज्यादा भी होना जरूरी है। अगर हमारा एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा ये रिएक्शन होगा, ज्यादा से ज्यादा सिंगलेट ऑक्सीजन पार्टिकल जो है वो इस तरफ जाएंगे। अगर हमारा एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट कम है, ठीक है, तो उतने कम सिंगलेट ऑक्सीजन जो है वो निकलेंगे। सो इट मींस कि जितनी भी कंसंट्रेशन में सिंगलेट ऑक्सीजन निकलती है वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू अवर एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट। मेरी बात समझिए कि जितनी सिंगलेट ऑक्सीजन बनेगी इसका मतलब है कि दोनों पार्टिकल डोनर और एक्सेप्टर के दरमियान में ब्रिज जो है वो उतना ही स्ट्रांग है, और वो ब्रिज उतना स्ट्रांग उस वक्त होगा जब एंटीजन एंटीबॉडी जो है वो उनकी इंटरेक्शन स्ट्रांग होगी, बायोटिन और स्ट्रेप्टोवर्डिन की इंटरेक्शन स्ट्रांग होगी, और नंबर ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडीज जो है वो ज्यादा होंगी। सो जब अब हमारा काम हो गया, सिंगलेट ऑक्सीजन बन गई, अब हमने सिंगलेट ऑक्सीजन को मेजर करना है कि ये कितना है। सो इसको मेजर करने के लिए यह सिंगलेट ऑक्सीजन जब इस अपना हमारे डोनर एक्सेप्टर पार्टिकल में जाएगी तो ये सिंगलेट ऑक्सीजन, ये ऑल्फिन जो पार्टिकल है, केमिल्यूमिनेसेंट पार्टिकल, इसके साथ कंबाइन करेगी, एक और प्रोडक्ट बनेगा, डाइऑक्सीटीन इसको कहते हैं, एंड इट इज अ केमिल्यूमिनेसेंस पार्टिकल के जिस तरह हमने वो आइसोल्यूमिनॉल और वो उनकी बात की थी कि इट हैज द कैपेसिटी कि इट विल रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ लाइट। सो दिस इज कांसेप्ट ऑफ लॉस लाइट। आई होप कि इस डायग्राम से मैंने ये चीजें जो है वो कर दी। मैं इसको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि हम फिर अगले टॉपिक की तरफ जाए। इसको एक बार दोबारा समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम अपने एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट की सेंसिटिविटी और स्पेसिसिटी को बढ़ाने के लिए हमने कहा था कि दो चीजें होती हैं, एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, जितना एंटीजन एंटीबॉडी जो है वो ज्यादा होंगी और जितना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन उनके दरमियान में होगा उतनी सेंसिटिविटी और स्पेसिसिटी बढ़ जाती है। और हमने ये कहा था कि अगर हम इसको कंबाइन कर दें किसी नॉन इम्यून रिएक्शन के साथ, कि जिसमें हमने बायोटिन और स्ट्रेप्टोवर्डिन, जो कि हमने कहा था कि नेचर में इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बिनेशन, जितना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होगा उतनी ज्यादा सेंसिटिविटी और स्पेसिसिटी बढ़ जाएगी। अब उसकी वजह क्या है, वो एक फिजिको केमिकल फिनोमेना है, वो मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन बस इतना याद रखिएगा कि इसकी वजह से इसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिसिटी बढ़ जाती है। ये हमारा एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट है, इट इज बाउंड विद द स्पेसिफिक एंटीबॉडी लेबल्ड विद बायोटिन। दिस इज द रिएक्शन। नाउ इट इज अटैच्ड on one side with the donor particle, which is a sensitizer particle tagged with the simple anti-TSH. Now on the other side we have donor particle which is attached with streptovertin. Now there is a bridge between the two particles, one bridge of the two antibodies जिसके दरम्यान में हमारा एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सैंडविच होता है। हमेशा याद रखिए कि एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट दो चीजों के दरमियान में जो सैंडविच चीज होती है वो हमारा एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट होता है, चाहे वो एंटीजन हो या एंटीबॉडी हो। अब इस ब्रिज में जो है वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन भी है और नॉन इम्यून रिएक्शन भी है। अब हमने देखा कि लाइट जो कि मैंने आपको बताया था हाई सेंसिटिव लाइट होनी चाहिए जो कि लेजर पार्टिकल है, जब ये सेंसिटाइजर पार्टिकल के ऊपर फॉल करती है तो इसमें थैलोसाइनिन एक कंपाउंड होता है जिसके साथ ऑक्सीजन टैग होती है। ये सेंसिटाइजर पार्टिकल इस ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ सिंगलेट ऑक्सीजन। नाउ दिस सिंगलेट ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम दिस पार्टिकल टुवर्ड्स द डोनर पार्टिकल। जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी इस पूरे ब्रिज की उतनी ज्यादा सिंगलेट ऑक्सीजन निकलेगी, जितनी ज्यादा इसकी कंसंट्रेशन होगी उतनी ज्यादा सिंगलेट ऑक्सीजन निकलेगी। ये डोनर पार्टिकल में जाएगी, डोनर में ये ऑल्फिन के साथ कंबाइन करेगा। ऑल्फिन के साथ जब सिंगलेट ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो एक केमिल्यूमिनेसेंट प्रोडक्ट बनता है और which will result in the generation of a light, and this light is made just as it is made in the normal routine chemiluminescent equipment. I hope कि इसको आगे है सर नहीं और स्लाइड नहीं है सर, सिर्फ इसमें एक दो चीजें आप देख लें। एक तो ये है कि chemiluminescence is basically production of light as a result of chemical reaction. We studied when we studied the very basic nature of the chemiluminescence. So remember that thing, that it is the production of light on chemical reaction. And the usual phenomena which leads to production of light or starting of the chemical reaction is oxidation. You know, luminol, which is used in the routine chemiluminescence, it is oxidized by some method, for example, hydrogen peroxide or something else.
So oxidation is a very good method of starting this chemiluminescence reaction. And here again, it is the oxidation which is causing chemiluminescence reaction. Second thing is very important, that why it is homogeneous. There is no removal of the unbound these labels. Unbound are not removed. That's why it is homogeneous. Unbound are present there. As Karan Naveed has very beautifully told you, that the travel of the singlet oxygen is facilitated only when there is a bridge, because the distance is very less. Remember this thing, that there are many unbound labels present in the vicinity, but they are not good enough for the travel of the singlet oxygen. For singlet oxygen, there has to be a bridge. So in the presence of free these labels, free antibodies, this reaction is so successful because of the traveling of the singlet. Third thing is very important, that for production measurement of the light generated by chemiluminescence, you have to have a very dark atmosphere. Remember that thing, the limitations of the chemiluminescence we studied, light leak, light piping. These are the limitations of chemiluminescence, and light so dushman uski. But here we have to give light, external light in it. So how it is managed? Because if there is and everything is going on, it is not like that. It's a separate big circle there, and the other, and only you can put light on this circle. It is not like this. It is. They are very tiny particles, and they are in the same environment. And I think it has to be done in phases, very, very quick phases, which is done, which are in microseconds maybe. That you put light, and then there's complete darkness, and then you measure the light produced by chemiluminescence. These are three things I wanted to add. Thank you, sir. ठीक है. और दूसरा मैंने कहा कि singlet oxygen does not react with the unbound chemiluminescent particle and inactivates in solution. ठीक है. So they are present there, but they have very short half lives. Very short. So यही चीज हम देखें कि ये हमारा एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट है. ठीक है जी. और ये हमारा जो एंटीबॉडी डोनर पार्टिकल है, एंटीबॉडी से टैग है. ये भी पार्टिकल है, ये हमारा स्ट्रेप्टोबाइडन कोटेड एंटीबॉडी है. ठीक है जी. और इनके साथ जो वो रिएक्शन होता है और उसके बाद चलो. ठीक है जी. इसमें मेन चीज ये है कि जो हमारी इंसिडेंट लाइट है जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ की होती है, और मिशन लाइट जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ की होती है. दूसरा ये कि ये इतना रिएक्शन है कि एक सेकंड के अंदर 60,000 सिंगलेट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैन बी जनरेटेड. ठीक है जी. ठीक है जी. तो आप देख लें कि इससे इसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी कितनी ज्यादा है. ठीक है जी. सर जो हमने जीटा मोल्स में देखा था chemiluminescence में ना खाना ये लगता है तो उससे ज्यादा सेंसिटिव होगा. और now we have been left with only two techniques. So very important techniques. One is the fluoroimmunoassay. It is fluoroimmunoassay is a technique which is not exclusively for our specialty, but it is used in immunology, in microbiology, and anywhere where fluorescence is required. So we will have a basic concept about the fluoroimmunoassay. मेरे ख्याल है हमने ये इसको फ्लोरेसेंस को बहुत अच्छे तरीके से पहले पढ़ा हुआ है. Let's have a very quick revision. What is fluoroimmunoassay? Fluoroimmunoassay is a technique that makes use of a fluorescent molecule. ठीक है जी. fluorescent molecule. जिस तरह हमने chemiluminescence में हमने देखा कि chemiluminescence label होता है, इसी तरह fluoroimmunoassay में जो है ना fluorescent label होता है. What are these labels? These are called fluorophore. और इनमें एक खूबी होती है कि इनके ऊपर जब लाइट फॉल करती है तो उसके बाद वो एक लाइट एमिट भी करते हैं. हम देखते हैं कि वो कैसी लाइट फॉल करती है और कैसी लाइट एमिट होती है. और डिफरेंट फ्लोरेसेंट लेबल जो कि हम यूज करते हैं उसमें फ्लोरेसेंस आइसोथायोसाइनेट, रोडामीन, यूरेनियम, एम्बेलिफ्रॉन, ये काफी सारे हैं जो लोग इम्तिहान में अपीयर हो रहे हैं. काइंडली थोड़े थोड़े जो है ना ये केमिल्यूमिनेसेंस लेबल क्या होता है, एंजाइम लेबल कौन कौन से होते हैं और फ्लोरोफोर लेबल कौन से होते हैं, क्योंकि मैडम अस्मा ने ये सवाल पहले इम्तिहान में, तो इसलिए मैंने कहा कि जो लोग अपीयर हो रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये लेबल्स के एक आध के नाम आपको जरूर आने चाहिए और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स.
मैडम मैंने कोई क्वेश्चन पेपर लीक तो नहीं किया? चले। अच्छा, व्हाट इज इम्यूनोफ्लोरेसेंस? इम्यूनोफ्लोरेसेंस इज अ टेक्निक कि जिसमें हम एंटीबॉडीज विच आर बाउंड टू द एंटीजन या एंटीजन जो कि टिश्यू में होते हैं उनको हम मेजर करते हैं, और ना सिर्फ ये टिश्यू में हम इसको मेजर करते हैं बल्कि बॉडी फ्लूइड्स में भी इसको मेजर करते हैं। आई होप मैडम इसी तरह ही है, ठीक है। और इसमें हम एक फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। और मैंने आपको बताया कि ये हाँ, इसकी एक इम्पॉर्टेंट जो यूटिलिटी है वो डर्मेटोपैथोलॉजी में है और रीनल पैथोलॉजी में इसकी बहुत सारा यूज है, ठीक है। चूंकि ये डायरेक्टली हमारे साथ नहीं है, लेकिन चूंकि आप लिटरेचर देखेंगे तो उसमें इम्यूनोफ्लोरेसेंस दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस होता है और एक इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस में हम एंटीजन को जो है वो मेजर करते हैं डायरेक्टली, और इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस में हम जो है वो एंटीबॉडी, बेसिकली एंटीजन व्हिच इज टैग्ड विद द एंटीबॉडीज, उसको हम मेजर करते हैं। ऐसे ही मैडम डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस में एंटीजन्स आर बाउंड टू द टिश्यूज। हाँ जी, वो आगे कर लेते हैं, ठीक ठीक है। अब हम देखते हैं कि जी इसको जल्दी से, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस जो है वो यूज होता है बेसिकली फॉर, मैंने आपको बताया रीनल पैथोलॉजी में और डर्मेटोपैथोलॉजी में, स्किन लीजन्स के लिए होता है। इसमें होता ये है कि जो एंटीजन टिश्यूज के अंदर होता है, जो सैंपल के अंदर होता है, वो फिक्स टू द स्लाइड होता है, और अगर उस एंटीजन के खिलाफ अगर कोई स्पेसिफिक एंटीबॉडी हम अगर टैग कर दें, और यानी कि एक हम टैग नॉन एंटीबॉडी लेते हैं जो कि इस टिश्यू के साथ जो है वो हम फिक्स कर देते हैं, अगर उस टैग एंटीबॉडी की स्पेसिफिक जो है वो एंटीजन जो है वो टिश्यू में मौजूद है, तो वो एंटीबॉडी उस टिश्यू एंटीजन के साथ टैग कर देगा, और फिर जब हम उसके ऊपर लाइट फॉल करेंगे तो वो फ्लोरेसेंस करेगा। तो सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस कि हम जो हमारा टिश्यू है, मिसाल के तौर पर हमारा स्किन टिश्यू है, उसको हम एक स्लाइड पे फिक्स कर देते हैं, और हम मिसाल के तौर पर कोई एक समझते हैं कि इसके अंदर ये वाली एंटीजन मौजूद है, तो हम उस एंटीजन के खिलाफ जो नॉन एंटीबॉडी जो कि फ्लोरोफोर के साथ लेबल्ड होता है, वो हम उस एंटीजन पे लगा देते हैं। अगर वो एंटीजन मौजूद है तो वो टैग एंटीबॉडी उस एंटीजन के साथ बाइंड कर देगी, और हम फ्लोरेसेंस लाइट पर फॉल करेंगे, और जब लाइट मतलब इमिट होगी, वो फ्लोरेसेंस करेगी, तो इसका मतलब है कि उसमें एंटीजन मौजूद है। दिस इज फॉर द डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस। इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस, ये जी मैंने आपको बताया, ये हमारा टिश्यू है जिसके अंदर वो जो ट्राइंगल सा जो है वो हमारा एंटीजन है, और जो एंटीबॉडी है, और वो जो ग्रीन रंग का जो वो जो फ्लर्स कर रहा है, दैट इज अवर फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल। Indirect immunofluorescence जो है that is used for in immunology for a large number of detection of antibodies in the serum. For example, anti-nuclear antibody, anti-nuclear cytoplasmic antibody, anti-double stranded DNA antibody, anti-smooth muscle antibodies, anti-gastric parietal cell antibodies, anti-E. coli antibodies. यानी कि जितनी भी आप एंटीबॉडीज के नाम ले सकते हैं जो कि इम्यूनोलॉजी में होती हैं, वो ज्यादातर इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस से होती है। इसमें वो सिंपल सा है कि हम एंटीजन को स्लाइड पे फिक्स कर देते हैं, और वो एंटीबॉडी जो कि हम मेजर करना चाह रहे हैं उसको हम उसके साथ टैग कर देते हैं, ठीक है जी। अगर वो एंटीजन हमारी उस अननोन एंटीबॉडीज के जो स्पेसिफिक हो, तो वो उस एंटीजन को बाइंड कर देगा। ऐसे ही मैडम एंटीजन्स आर प्रेजेंट इन द जी टिश्यू, यूजुअली रेड लिवर बिल्कुल बिल्कुल जी जी, and commercially prepared slides are also available and be put in the serum sample. If the antibody is present in that serum sample, it binds to the specific antigens, and then we add a secondary tagged antibody. ये मुझे सारा इम्यूनोलॉजिस्ट मुझे काइंडली बता रही हैं कि जी हम कमर्शियली अवेलेबल जो है वो एंटीजन जो है वो हमारे पास होते हैं, जो कि हम हाँ जो कि हम रैट वगैरह से लेते हैं, उसके साथ हम अपना एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि एंटीबॉडी जो है वो अनलेबल्ड उसके साथ लगा देते हैं, और उसके ऊपर हम टैग्ड एंटीबॉडी लगाते हैं। अब हमने देखा है कि हमारा एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एक एंटीजन और एक एंटीबॉडी के दरमियान में आ गया है। अगर हमारा जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी मौजूद है तो वो फ्लोरेस करेगा, एंड दिस इज ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल में ये हमारा कमर्शियली प्रिपेयर्ड एंटीजन है, ये जो सादा सा एंटीबॉडी है ये हमारा एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट है, और वो जो फ्लोरेस कर रहा है ये हमारा लेबल एंटीबॉडी है। So this is a technique which is used to detect our antibodies. So direct immunofluorescence is a technique which is used to detect
unknown antigen in the tissue, which tissue may be in the form of fluid also. And indirect immunofluorescence is a sandwich assay in which our analyte of interest is between the antigen, which is tagged to the slide, and tagged antibody, which is, and our analyte of interest is in between an antigen and an antibody. I hope इसमें कोई प्रॉब्लम ये हमारा इतना ज़्यादा इसमें नहीं है, लेकिन क्योंकि ये लिटरेचर में बहुत ज़्यादा अवेलेबल था तो मैंने कहा कि हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें. Now, very important technique, fluoroimmunoassay. Let's have a basic concept about this technique. होते हैं या फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल होते हैं. हम मिसाल करते हैं कि हम एक फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल के ऊपर हम लाइट फेंकते हैं, ठीक है जी, लाइट डालते हैं, तो फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल इट विल एक्साइट इट. अब वो एक्साइटेशन बेसिकली है क्या, लेट्स सी इट. जब एक्साइटेशन हम लाइट करेंगे तो फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल में उसके डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये अंदर वाला शेल जो है वो लोअर एनर्जी शेल है और बाहर वाला जो है वो हायर एनर्जी शेल है. लेट्स सपोज के इसके ऊपर हम लाइट इस शेल में डालते हैं. इट इज अ पार्ट ऑफ फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल. सो इलेक्ट्रॉन विल ट्रेवल फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू द हायर एनर्जी ऑर्बिट. ठीक है जी, ये रेड वाला वही है जो कि हायर एनर्जी ऑर्बिट में चला गया, लेकिन ये बहुत शॉर्ट फेज होता है और हायर एनर्जी ऑर्बिट से ये मॉलिक्यूल इमीडिएटली लोअर एनर्जी में वापस चले जाते हैं. ठीक है जी, और जब ये लाइट चला जाता है तो ये एक लाइट प्रोड्यूस करता है. सो दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्लोरोइम्यूनोएस्से. आई रिपीट इट कि जब किसी भी फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल के ऊपर हम जब लाइट पास करते हैं, फॉल करते हैं, तो वो उसको एक्साइट करता है. लेट्स सी कि ये एक कोई भी एक एटम है इस फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल का कि जिसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर वाले शेल में पड़ा हुआ है. जब इसके ऊपर लाइट फॉल करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को मतलब एब्जॉर्ब करेगा, और जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगा, जिस तरह आप बहुत अच्छी एग्जांपल ये है कि एक ट्रेनी होता है, जब वो एफसीपीएस के इम्तिहान से पास करता है तो वो कंसल्टेंट हो जाता है. ठीक है जी, तो ये एक ट्रेनी है जिसको हमने एक एफसीपीएस की जो है वो लाइट दी, तो वो उसके बाद वो चला जाता है. और मेरे जैसा कंसल्टेंट जब पेरिफेरी में जाता है तो वो अपना सारा नॉलेज भूल के दोबारा अंदर वाले शहर में चले जाता है. ठीक है, तो खैर इट वाज अ जोक कि जी, तो जब वो अंदर वाले में जाएगा तो इट विल इमिट सम लाइट. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोरेसेंट लाइट. अब फ्लोरेसेंट लाइट में जो हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल होना चाहिए, ठीक है, कि जिसके अंदर जब उसके ऊपर इनिशियल लाइट फॉल करे तो वो उस लाइट की ओरिएंटेशन को बरकरार रखे. ठीक है ना, मिसाल के तौर पर अगर लाइट जो है वो हमने एक वर्टिकल एंगल में अगर इसके ऊपर फॉल की हुई है तो वो एक्साइटेशन के बाद जो लाइट इमिट करता है वो भी वर्टिकली होनी चाहिए, यानी कि वो इनिशियल लाइट की जो ओरिएंटेशन है उसको रिटेन करे. ये एक वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल ये है कि उसको जो इनिशियल लाइट है उसकी ओरिएंटेशन को बरकरार रखना चाहिए. ऐसा ना हो कि उसकी ओरिएंटेशन को वो चेंज कर दे. अगर वो चेंज कर देगा तो वो हमारा आइडियल मॉलिक्यूल नहीं है. ठीक है, तो इसमें जो बहुत आइडियल, नियर टू आइडियल मॉलिक्यूल है वो फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल है. ठीक है, अगर हम फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल के ऊपर अगर हम पोलराइज लाइट डालते हैं तो जो इमिटेड जो लाइट होगी दैट विल बी अ फ्लोरेसेंट लाइट, दैट विल बी अ पोलराइज्ड. सो फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल हैज द करेक्ट, हमने कहा एक ऐसा हमारे पास फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल होना चाहिए कि जिसमें जब हम इसके ऊपर एक खास किस्म की लाइट पास करें तो वो उस लाइट की ओरिएंटेशन को जो है वो बरकरार रखे. हम देखेंगे ओरिएंटेशन क्या है, अभी हम अगली स्लाइड में देखते हैं. तो हम मिसाल के तौर पर एक फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल है जिसका नाम है फ्लोरेसिन. ये एक नियर टू आइडियल फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल है कि जिसके अंदर अगर हम पोलराइज लाइट इसके ऊपर करें इसको एक्साइट करने के लिए तो जो री इमिटेड फ्लोरेसेंट लाइट होती है वो पोलराइज्ड होती है. काइंडली इस फिनोमेना को समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि चीजें आगे थोड़ी सी जो है ना डिफिकल्ट हो जाएंगी. ठीक है जी, तो फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल इज अ मॉलिक्यूल कि अगर उसके ऊपर एक खास किस्म की लाइट फॉल की जाए तो वो इमिटेड जो लाइट होती है वो उसी लाइट की जो इनिशियल लाइट होती है उसकी ओरिएंटेशन को बरकरार रखता है. तो अगर हम इसके ऊपर एक पोलराइज लाइट फॉल करें तो वो जो इमिटेड लाइट होगी वो भी पोलराइज होगी. So this has to be one of the characteristics of our essential requirement of fluoroimmunoassay.
नो व्हाट इज पोलराइज्ड लाइट, ठीक है जी। जब लाइट ट्रेवल करती है तो वो हर तरफ मूव करती है, वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूव करती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी, जहां उसका दिल मूव करती है। आप टॉर्च की रोशनी को देखें, वो हर तरफ जो है वो जा रही होती है, ठीक है ना। अगर हम किसी भी तरह से, अगर उसकी जो बहुत ज्यादा उछल कूद है उसको हम मतलब जिस तरह एक शरारती बच्चा होता है, वो क्लास में जो है ना कभी इधर दौड़ा होता है, कभी उधर दौड़ा होता है, कभी इधर जा रहा होता है, उधर जा रहा होता है, अगर हम उसको पकड़कर अगर सीट पे बिठा दें, ठीक है जी, तो वो उसकी जो मूवमेंट है, जो इधर उधर मूवमेंट है, वो सारी खत्म हो जाएगी और उसकी सिर्फ मूवमेंट जो है वो पढ़ाई की तरफ होगी। सो दिस इज पोलराइज्ड लाइट, ठीक है जी। अगर एक लाइट जो है जो कि उस बच्चे की तरह है, जो कि हर जगह पे मूव कर रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, अगर हम उसको बिठा दें और उसकी डायरेक्शन जो है, हम कहें कि अब तुम्हारी डायरेक्शन जो है वो इस सीट पे बैठ के सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है, ठीक है जी, ठीक है जी। जिस तरह इम्तिहान से बहुत पहले 2-3 साल हम जो है ना उछल कूद करते हैं, कभी बाजार जा रहे होते हैं, कभी इधर जा रहे होते हैं, कभी उधर जा रहे होते हैं, फिर एकदम इम्तिहान की तारीख आ जाती है कि जी 20 अप्रैल इज द डेट फॉर एग्जाम, तो हम सारा कुछ छोड़ के जो है ना वो सीट पे बैठ जाते हैं और अपनी ओरिएंटेशन हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की तरफ करते हैं। सो दिस इज द फिनोमेना ऑफ पोलराइज्ड लाइट। ये एक लाइट है जो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, ये एक लाइट है कि जो कि डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है। ये हमारे FCPS के पहले 2-3 साल हैं जो कि हमने गुजारे हैं। फिर एकदम इम्तिहान की CPSP जो है वो डेट अनाउंस कर देता है, ठीक है जी, दिस इज पोलराइजिंग फिल्टर। तो ये अब एक डायरेक्शन में जो लाइट जा रही है, दिस इज ओवर पोलराइज्ड लाइट। आई थिंक सो कि इम्तिहान के कॉन्टेक्स्ट में मैंने जो एग्जांपल दिया है, इट इज वेरी मच क्लियर। नाउ लेट्स सी, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा रह गया, आई डोंट वांट टू हैव immunoassay 5, ठीक है जी। हम वी विल हैव अ टेक्निक विच इज नोन एज द फ्लोरेसेंस पोलराइजेशन immunoassay। इस टेक्निक के लिए आपको दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, इसको समझना जो है वो बहुत जरूरी है। दूसरा मैंने बताया था कि फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है कि जिस पे जब पोलराइज्ड लाइट पड़ती है तो वो इमिटेड लाइट जो है वो पोलराइज है, विच इज अ रिक्वायरमेंट फॉर fluoroimmunoassay. It is a homogeneous competitive fluorescence immunoassay. It is used for drugs, hormones, TDM, immunology. Different instruments इस टेक्निक पे अवेलेबल हैं। हमारे टॉक्सिकोलॉजी में जो है एबट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है, TDX है, IMX है कि जिसमें फ्लोराइजेशन अमीनो एसिड जो है वो एंजाइम अमीनो एसिड के साथ कंबाइन होता है। ये XSIM है जिसमें माइक्रो पार्टिकल एंजाइम अमीनो एसिड और आयन कैप्चर, ये भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड हैं, लेकिन क्योंकि आपके उस कोर्स में नहीं है इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं। सो दीज आर द इंस्ट्रूमेंट व्हिच आर बेस्ड ऑन फ्लोराइजेशन अमीनो एसिड टेक्निक। ये टेक्निक बहुत सादा सी है कि हम इसमें जो है वो फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल के ऊपर जो है वो पोलराइज लाइट डालते हैं और वो फ्लोरेसेंट लेबल मॉलिक्यूल जो होता है, ठीक है जी, वो उस एक लाइट को जो है वो एमिट करता है और उस एमिटेड लाइट को हम मेजर करते हैं, ठीक है जी। सो दिस टेक्निक इज डिफरेंट फ्रॉम रूटीन केमिल्यूमिनेसेंस, ऐसे कि जिसमें हमें एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ लाइट जो है वो चाहिए होगा, ठीक है। अब अगर इस मॉलिक्यूल को हम कुर्सी पे बिठा दें, यानी कि उसको फिक्स कर दें और उसके ऊपर लाइट फॉल करें, ठीक है जी, तो वो जितनी भी लाइट एमिट करेगा, ठीक है जी, वो ये बहुत अच्छी एग्जांपल मैं भी आपको देने लगा हूं। यही माइंड में कीजिएगा, CPS के एग्जाम की मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर एक कैंडिडेट कुर्सी पे बैठ जाए और वो फिक्स हो जाए पढ़ने के लिए, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। ऐसे ही जी, तो अगर एक फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल को हम फिक्स कर दें, ठीक है जी, तो वो जो है वो मैक्सिमम, अगर उसके ऊपर पोलराइज लाइट हो तो वो जो लाइट एमिट करेगा वो मैक्सिमम पोलराइज होगा। यानी कि अगर एक कैंडिडेट अगर पढ़ाई के लिए वो बैठ जाता है, उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, तो वो जो इनिशियल लाइट जो उसके ऊपर फॉल करेगी उसकी ओरिएंटेशन को जो है मेंटेन करेगा, ठीक है जी। यानी कि अगर उसके ऊपर पोलराइज लाइट पड़ रही है तो वो मैक्सिममली जो इमिट लाइट करेगा वो पोलराइज करेगा। यानी कि अगर कैंडिडेट अगर कुर्सी पे बैठ के पढ़ता है तो वो जितना मतलब पढ़ेगा उतना अच्छा वो रिजल्ट देगा। सो अगर एक मॉलिक्यूल को हम एक रिजिड कर दें, फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल को, और उसके ऊपर हम अगर कोई लाइट फॉल करें, तो वो जो मैंने आपको एक कैरेक्टरिस्टिक बताई थी कि
जो इमिटेड लाइट है उसको इनिशियल लाइट की ओरिएंटेशन को मेंटेन करना चाहिए. सो दिस इज द फिनोमेना. नाउ लेट्स सी डिग्री ऑफ पोलराइजेशन ऑफ इमिटेड फ्लोरेसेंट लाइट. यानी कि एक मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर अगर फ्लोरेसेंट लाइट पास करती है, फॉल करती है, तो वो जो इमिट लाइट होती है उसकी पोलराइजेशन किन चीजों पे डिपेंड करती है? नंबर 2 विस्कोसिटी, नंबर 2 रेट ऑफ रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल. यानी कि एक सॉल्यूशन है जितना विस्कस होगा उसमें पार्टिकल जो है वो उतना ही फिक्स रहेगा, उतनी उसकी मूवमेंट कम होगी. और सॉल्यूशन के अंदर जितना मॉलिक्यूल जो है वो उसकी रोटेशन कम होगी, उतनी इमिटेड लाइट जो है वो उतनी ज्यादा पोलराइज्ड होगी. सो दिस इज द बेसिक फिनोमेना. यानी अगर जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा वो उतना ज्यादा फ्रीली मूव करेगा, और उसके ऊपर जब पोलराइज्ड लाइट फॉल की जाएगी तो जो इमिटेड पोलराइज्ड लाइट होगी वो लेस पोलराइज होगी, जिसे हम डीपोलराइज कहते हैं. और अगर मॉलिक्यूल जितना बड़ा होगा उसकी मूवमेंट जो है वो सॉल्यूशन के अंदर कम होगी, और उसके ऊपर हम जब फ्लोरेसेंट लाइट डालेंगे तो वो इमिटेड लाइट जो है वो ज्यादा पोलराइज्ड होगी. सो दिस इज द बेसिक फिनोमेना ऑफ द फ्लोरेसेंट पोलराइजेशन इम्यूनो एसे. यानी कि फ्लोरेसेंट पोलराइजेशन इम्यूनो एसे के लिए हमारे पास एक ऐसा फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल होना चाहिए कि जिसके ऊपर जब लाइट फॉल करे तो वो अपनी इनिशियल ओरिएंटेशन को जो है वो मेंटेन रखे. सो अगर एक मॉलिक्यूल है वो अगर उसकी सॉल्यूशन के अंदर मूवमेंट जो है वो कम से कम होगी, ठीक है, तो जब उसके ऊपर एक पोलराइज्ड लाइट फॉल करेगी तो इमिटेड लाइट जो है वो उतनी ज्यादा पोलराइज होगी. अब वो सॉल्यूशन के अंदर मूवमेंट उसकी किस वक्त कम होगी कि अगर सॉल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा थिक है या उसका साइज जो है वो बड़ा है. जितने बड़े साइज का मॉलिक्यूल होगा, ठीक है जी, उसकी मूवमेंट उतनी ही कम होगी, जिसकी वजह से जब उसके ऊपर पोलराइज्ड लाइट फॉल करेगी तो वो उतनी ही ज्यादा पोलराइज्ड लाइट इमिट करेगा. लेकिन अगर उसका मॉलिक्यूल का साइज बहुत छोटा होगा तो वो मॉलिक्यूल जो है वो सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा रोटेट करेगा, जिसकी वजह से जब उसके ऊपर पोलराइज्ड लाइट फ्लोरेसेंट उसके ऊपर फॉल की जाएगी तो जो इमिटेड पोलराइज्ड लाइट होगी वो लेस पोलराइज्ड होगी. आई थिंक सो कि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है. मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि फ्लोरेसेंट पोलराइजेशन इम्यूनो एसे डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड द रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल. जितना ज्यादा मॉलिक्यूल छोटा होगा उतनी ज्यादा उसकी रोटेशन जो है वो बहुत ज्यादा होगी. उसके ऊपर जब पोलराइज्ड फ्लोरेसेंट लाइट फॉल की जाएगी तो वो लाइट जो इमिट करेगा वो लेस पोलराइज होगी. और जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा वो कम रोटेट, क्योंकि उसका वजन जो है वो जिस तरह मतलब मेरे जैसा मोटा आदमी अगर जॉगिंग करेगा तो उसको भागने के लिए बहुत ज्यादा मतलब कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन वो अपनी जगह पे मतलब फिक्स रहेगा. तो जो बड़ा मॉलिक्यूल है वो सॉल्यूशन के अंदर इतनी फ्रीली रोटेट नहीं करता. सो उसके ऊपर जब लाइट पोलराइज फॉल की जाएगी तो एज कंपेयर टू द स्मॉल मॉलिक्यूल जो इमिटेड लाइट होगी इट विल बी मोर पोलराइज्ड लाइट. अब इस फिनोमेना को हम लेते हैं. इसमें दिस इज ओवर एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट, ये जो क्या जी पिंक कलर का, और इसके ऊपर जो हमारा ग्रीन वाला जो है ये फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल है. सो इट इज एनालाइट लेबल्ड विद फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल. अब इसके साथ वही एंटीबॉडी आगे अटैच हो जाएगी. सो ये एक लेबल्ड एनालाइट एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स और ये बड़े साइज का मॉलिक्यूल हो जाएगा. अब इसमें वो कोई चीज ऐसी नहीं नजर आई जो कि हमने पहले देखी थी कि कोई चीज इनहिबिट करता है. इसमें जब एंटीबॉडी इस एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट टैग जो है जब इसके साथ लगेगा तो वो एक बड़े साइज का मॉलिक्यूल हो जाएगा एज कंपेयर टू ये हमारा फ्री एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट है. मैं फिर बताना चाहता हूं कि ये एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट जो ब्लू वाला है और ये पिंक वाला ये एक ही है, सिर्फ कलर को चेंज मैंने ये किया है कि ये हमारा वो टैग है और ये फ्री है. अब ये जब एंटीबॉडी के साथ कंबाइन करेगा तो ये चीज बनाएगा विच इज अ स्मॉल मॉलिक्यूल एज टू द मॉलिक्यूल विच हैज बीन लेबल्ड. ठीक है जी. तो ये एक लेफ्ट साइड पे हमारा स्मॉल मॉलिक्यूल है और राइट साइड पे हमारा लार्ज साइज का मॉलिक्यूल है. अब देखते हैं होता क्या है जी. ये हमारा एक स्मॉल साइज का मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो कि लेबल्ड है फ्लोरेसिन के साथ. ठीक है जी. अब ये मॉलिक्यूल के अंदर बहुत ज्यादा रोटेशन करेगा, ठीक है जी, फ्री रोटेशन होगी. अब इसके ऊपर सपोज पोलराइज लाइट फॉल करती है, ठीक है, तो ये लाइट इट विल बी लेस डिग्री ऑफ पोलराइजेशन, जिसे हम कहते हैं डीपोलराइज लाइट एज कंपेयर टू द लार्ज साइज मॉलिक्यूल. ठीक है, ये कंपैरिजन की बात हो रही है.
ये हमारा बड़ा मॉलिक्यूल है जो कि एंटीबॉडी के साथ टैग हो गया। इस पे पोलराइज लाइट जब पड़ेगी, इसकी स्लो रोटेशन होगी, इस पे पोलराइज लाइट जब पड़ेगी तो इट विल बी emitted light will be more polarized light. So it means कि अगर एक small size का molecule है जिस तरह कि हमारा free analyte है, it will be free to move within the solution. इसके ऊपर जब polarized light पड़ेगी तो emitted light will be depolarized और showing having low degree of polarization. लेकिन अगर बड़े size का molecule है जो कि antibody के साथ tag है, इसके ऊपर जब polarized light पड़ेगी तो जब ये it is slow to rotate, so the emitted light will be having a high degree of polarization. So this is called fluorescent polarization immunoassay. ये वही चीज है। अब हम इसको देखते हैं कि जी हमारा एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट 3+ है, जो टैग्ड है वो 1+ है। ये कंपीट करेंगे फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट्स। रिजल्ट ये होगा कि ज्यादा फ्री एनालाइट जो है वो ज्यादा एंटीबॉडी के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है, और लेस जो है वो जो एंटीबॉडी के साथ उधर होगा। तो ये हमारे पास पोलराइज लाइट जब इसके ऊपर फॉल करेगी तो चूंकि इसमें फ्री मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा है और हमारा जो है वो ये जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल है वो कम है, तो इट विल बी अ डीपोलराइज लाइट, ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो वाले ज्यादा हो गए, ठीक है जी। इसमें फिर जो कैप्चर होगी पोलराइज लाइट को इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बिल्कुल बिल्कुल वो ये इस तरह जी, ये है, ये इसमें जो हमारी होगी जो ठीक है जी, ये सॉरी ये पीले वाली लाइट जो है ये हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है जी। नाउ लेट्स गो टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज द रेडियो इम्यूनोएसे। सो फ्लोरेसेंट पोलराइजेशन इम्यूनोएसे में हमने ये देखा कि हमें हमारे पास एक ऐसा फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल होना चाहिए कि जब उसके ऊपर कोई एक खास ओरिएंटेशन की लाइट फॉल करे तो वो उसी लाइट को एमिट करे जो कि उसी ओरिएंटेशन की है। यानी कि एक पोलराइज लाइट जब एक फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल के ऊपर फॉल करे तो आइडियली एक फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल को पोलराइज लाइट ही जो है वो एमिट करनी चाहिए। अगर साइज ऑफ मॉलिक्यूल जिस तरह का हमारा फ्री एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर इसका साइज जो है वो स्मॉल है तो इसके ऊपर जब पोलराइज लाइट फॉल करेगी तो चूंकि इट इज फ्री टू मूव तो इमिटेड लाइट विल बी डीपोलराइज्ड। बट अगर एक मॉलिक्यूल जो है वो बड़े साइज का है और उसके ऊपर जो है वो अगर लाइट फॉल करेगी विच इज स्लो टू मूव, तो जो एक्साइटेड लाइट है इट विल बी emitted light will be more polarized. So there is a competition between the free analyte and the fluorescent label analyte. If more of the fluorescent label is available, it will combine with the antibody and the number of the label particle will be increased. And if the fluorescent polarized light falls on such large molecules, the light will emitted will be polarized one. Now another important technique which is still in use is the radio immunoassay. अब हमने क्योंकि बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं, इसको समझना जो है हमारे लिए कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। It is a technique which was introduced in 1960. It is one of the very oldest technique immunoassay की, बल्कि मेरा ख्याल है मैंने जितनी भी देखी हैं ये it is the oldest one which was used initially for insulin in plasma in 1960. Still it is used, ठीक है ना, टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों। अगर हमने इसमें एंटीबॉडी को लेबल करते हैं तो उसको अमीनो रेडियोमेट्रिक एसे कहते हैं, वरना इसको रेडियो इम्यूनो एसे कहते हैं। आगे हम उसको देखेंगे रेडियो इम्यूनोमेट्रिक एसे भी क्या होता है, ठीक है। इसमें जो मोस्ट कॉमनली बहुत सारे रेडियो लेबल्स यूज होते हैं, लेकिन जो मैंने समझा कि वो ID 125 और 131 बिकॉज ऑफ द ईज कि ये आयोडीन मॉलिक्यूल जो है वो प्रोटीन के टायरोसिन रेजिड्यू, टायरोसिन में जो आयोडीन होती है तो ये टायरोसिन रेजिड्यूज के साथ जो वो इजीली कंबाइन हो सकते हैं। मैंने बताया कि अभी भी यूज होता है मोस्टली फॉर द हार्मोन्स एंड इट इज अ टाइप ऑफ हेटेरोजेनस कॉम्पिटिटिव एसे। सो इसमें अभी इतनी मुश्किल चीज नहीं है कि दिस इज ओवर रेडियो लेबल्ड एनालाइट। मैं इस पर अभी ज्यादा जोर नहीं दूंगा क्योंकि हम बहुत दफा पढ़ चुके हैं। It suppose combined with the specific antibody, it will result in this complex. And it is our free analyte. It combines with antibody, specific antibody, and it will result in this. The difference between the two is ना size का है ना कुछ और वाला है, सिर्फ इसमें यहाँ रेडियोएक्टिविटी जनरेट होगी, यहाँ रेडियोएक्टिव जनरेट नहीं होगी, और इसी फिनोमेना को हम लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास बहुत सारे फ्री एनालाइट हैं और ये हमारे पास रेडियो लेबल्ड एनालाइट है।
और ये हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ एंटीबॉडीज है। ठीक है जी। अब होगा ये कि ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, लेकिन हम मैयर इसमें जो है ना रेडियो एक्टिविटी करेंगे। सो वो वी विल सी कि जो हम ये रेडियो एक्टिविटी मैयर करते हैं दैट विल बी थ्रू इंडिकेशन ऑफ आवर एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितनी ज्यादा रेडियो एक्टिविटी होगी, लेकिन इसमें याद रखें कि ये रेडियो एक्टिविटी मैयर कर रहे हैं हम उन एंटीबॉडी के साथ जो कि कैप्चर एंटीबॉडीज हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी हम दो तरीकों से मैयर करते हैं, एक हम सोल्यूशन में मैयर करते हैं, एक हम कैप्चर एंटीबॉडी के साथ। तो दोनों में डिफरेंट है। यहाँ पे जो हम रेडियो एक्टिविटी मैयर कर रहे हैं वो कैप्चर एंटीबॉडी के साथ, और इस रेडियो एक्टिविटी को मैयर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम गैमा काउंटर कहते हैं। ठीक है जी। कैप्चर एंटीबॉडी मींस फिक्स्ड एंटीबॉडी, फिक्स्ड ऑन सरफेस। और हॉट आपकी बुक में लिखा होगा कि जी हॉट एंटीजन और एंटीबॉडी, हॉट वो होती है जो कि रेडियो लेवल्ड होती है, और कोल्ड जो होती है वो जो कि फ्री होती है। ठीक है जी। और इसमें क्योंकि हेट्रोजीनियस है तो इसमें हर स्टेप के ऊपर जो है ना वो वॉशिंग होगी। मैंने उसका जिक्र नहीं किया क्योंकि हम उसको बहुत दफा पढ़ चुके हैं। ठीक है जी। तो इंटेंसिटी ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन इन द टेस्ट सैंपल। ठीक है। और ये हमारा गैमा काउंटर, और बहुत सारी थी, लेकिन ये एक मुझे रीजनेबल लगी जो कि मैं आपको बता दूं। ठीक है जी। और मैंने इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। जी जी सर। All our nuclear medical centers in Pakistan they are still doing hormones on RIA because they make their own. Our Atomic Energy Commission, they make their own reagent kits, their own labels. Some are imported also, but mostly they are made here. Still the cost is very less. So all the government nuclear medical centers they are run by Atomic Energy Commission, and they do the hormone testing on RIA. So RIA is not enough, it's still in function. Then is IRMA. IRMA मैंने बताया कि जब हम एंटीबॉडी को रेडियो लेवल कर देते हैं तो उसको हम IRMA कहते हैं। यही चीज हमने पढ़ी है कि हमारे पास एक एंटीबॉडी है जो कि रेडियो लेवल है। अब देखेंगे इसमें लेवल जो है वो FC फ्रेगमेंट पे है। ठीक है ना। वो जो Y की जो टांग है उसके ऊपर लगा होता है। कभी भी FAV फ्रेगमेंट के ऊपर जो है वो एंटीजन है, मतलब वो लेबल नहीं लगाते। यही हमारा मसला था उसके अंदर LOCI के लोसाई के अंदर, कि उसमें हम बहुत ज्यादा एंटीबॉडी नहीं लगा सकते क्योंकि ये FC फ्रेगमेंट पे लगी होती है। ये रेडियो लेवल एंटीबॉडी है। अब इसमें ये थोड़ा सा समझने की चीज है कि इसमें दो चीजें हैं। ये जो लेफ्ट साइड पे है ये हमारा एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट है, और जो राइट साइड पे है ये वही एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि सॉलिड सरफेस पे लगा हुआ है। दिस इज कॉल्ड कैप्चर एंटीबॉडी। हमने मैयर जो है वो लेफ्ट साइड वाला जो हमारा पीले वाला है, ठीक है ना, उसको हमने मैयर करना है। ठीक है जी। अब ये दोनों जो एंटीबॉडीज हैं ये इस रेडियो लेवल एंटीबॉडी, दोनों एंटीजन जो हैं, एक जो कैप्चर एंटीजन है और एक जो फ्री एंटीजन है, दे विल कंपीट फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ रेडियो लेवल एंटीबॉडी। यहां थोड़ा सा फिनोमेना डिफरेंट है। ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पर ये सिचुएशन आ गई। ठीक है। इसमें हमारे पास जो पीले वाली यानी कि फ्री एंटीजन जो है हमारे जो सैंपल में है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जो लेबल्ड एंटीजन है। ठीक है ना, वो ज्यादा है। सो मोर ऑफ द एंटीबॉडी विल बी कंबाइंड। मिसाल के तौर पर हमारे पास एंटीबॉडी जो है वो टोटल 6 हैं, तो 6 में से 5 जो है इसके साथ लग गई। ठीक है ना, एक जो है वो उधर आके लग गई। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि अब एक चीज है कि इसमें हम जब वॉशिंग करते हैं तो वॉशिंग करने के बाद हम इसमें जो हमारा सुपरनेटेड आया इसको फिर सेंट्रीफ्यूज करते हैं, और जो सुपरनेटेड ऊपर होता है उसको हम लेते हैं, क्योंकि हमारी जो एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट है वो अभी सोल्यूशन में है, अभी वो सॉलिड सरफेस में। ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि जो पिछले हमने देखा था उसमें हमारा एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो, इसमें हमने जब हमारा एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट, ये हमारा जो कुछ भी था ये फिनोमेना हमारा सॉलिड सरफेस के ऊपर हो रहा था। सो हमने वॉशिंग करके सब कुछ निकाल देते हैं, और जो सॉलिड सरफेस पे जो रेडियो एक्टिविटी होती है उसको हम मेजर करते हैं। यहां पर ये होता है कि जो हमारा रेडियो एक्टिव मटीरियल है वो भी सोल्यूशन फॉर्म में है, मतलब ऊपर है। ठीक है जी। और कंपटीशन है एक बाउंड एंटीजन का और एक फ्री एंटीजन का। सो इसमें जब ये डिपेंडिंग अपॉन देयर कंसंट्रेशन, अगर हमारा फ्री एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो मोर ऑफ द इट विल कंबाइन टू द रेडियो लेबल्ड एंटीबॉडी। अब इसमें हम वॉशिंग करने के बाद सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हमारा जो रेडियो लेबल्ड एंटीबॉडी है
जो कि हमारे एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट के साथ है, वो ऊपर रह जाता है सोल्यूशन में, उसकी रेडियो एक्टिविटी को मेजर करते हैं। और उसमें ये फिनोमेना जो है हमारा, जो यानी कि इसमें जितनी ज्यादा रेडियो एक्टिविटी होगी उतनी ज्यादा हमारा एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो होगा। यानी कि जो रेडियो इम्यूनो ऐसे है उसमें हम लेबल्ड रेडियो एक्टिविटी को मेजर करते हैं, लेकिन जो इरमा में है, इरमा में हम जो उस रेडियो एक्टिविटी को मेजर करते हैं जो कि सोल्यूशन में होता है। हम दोनों तरीकों से मेजर कर सकते हैं। इसमें जो हमारा जो बाउंड एंटीजन है वो चूंकि हमारा एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं है, तो इसलिए हम इस रेडियो एक्टिविटी को मेजर करते हैं सुपरनेटेंट में। और इसमें जो सुपरनेटेंट में जो रेडियोएक्टिविटी होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट। सो बेसिक डिफरेंस इन रेडियो इम्यूनोएसे एंड इरमा इज दैट इन रेडियो इम्यूनोएसे वी हैव कैप्चर्ड एंटीबॉडी एंड फॉर दैट मैं आपको एक दफा दोबारा बताता हूँ ताकि इसको हम क्लोज करें, टाइम इज रनिंग शॉर्ट। बस ये आखिरी स्लाइड है, ठीक है जी। तो इसमें हमारा हमने मेजर की रेडियो एक्टिविटी टू द ओवर बाउंड रेडियो एक्टिविटी। इसमें हमने मेजर की रेडियो एक्टिविटी इन द सुपरनेटेंट, यानी कि वो जो कि हमने सेंट्रीफ्यूज किया। सो दिस इज ओवर इरमा। नो देयर आर सर्टेन, ये सारा कुछ जो मैंने बोला है जी, देयर आर सर्टेन, ये मैंने बताया कि ये दोनों में है कि इसमें रेडियो एक्टिविटी जो सोल्यूशन में है इरमा में वो एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट की कंसंट्रेशन। देयर आर एडवांटेजेस ऑफ इट इज सेंसिटिव टेक्निक and it can measure small analytes, but there are certain disadvantages regarding radio labeled agents. उनका hazards है, special trained persons होने चाहिए, इस लेबल को हैंडल करने के लिए होना चाहिए, स्पेशल अरेंजमेंट्स फॉर स्टोरेज ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल, इसकी शेल्फ लाइफ का मसला है। लेकिन इसमें यह है कि ये थोड़ा सा बाकियों के मुकाबले में सस्ता है, लेकिन however enzyme immunoassay and other technologies have largely replaced radio immunoassay, but still it is our एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट। बस एक स्लाइड रह गई और ये स्लाइड मुझे बहुत पसंद है और बस इस स्लाइड को जरा मेरे साथ शेयर कीजिएगा और इसमें देखिएगा कि ये स्लाइड में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपको नजर आएगी, अगर मेरी पर्सनल है लेकिन मैंने कहा आप लोगों के सबके साथ मैं शेयर करूँ। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने जो है ना मुझे मौका दिया कि मैं इतनी बड़ी गैलेक्सी ऑफ पैथोलॉजिस्ट के साथ मुझे मौका मिला। आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू और मैंने कोशिश की है कि मैं सब्जेक्ट को कर सकूं, तो इंशाल्लाह आप लोगों से रब्ता रहेगा। एंड थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट विशेस फॉर एवरीबॉडी, स्पेशली फॉर all those 10 candidates who are appearing in the exam. Thank you very much and Khuda Hafiz. Thank you very much. Let's give a big hand to excellent. I think these were historical lectures. These 4 lectures they made history and for PSCP and exactly the purpose why PSCPs are made fulfilling that purpose. And we are on behalf of all the trainees and consultant chemical pathologists, I personally thank Karan and I wish him a very best of luck in his professional pursuits. They not mind if you send questions or queries by email, by SMS, by phone, anything. We are all available for those questions. And now this is the of the Zoom lecture series for the time being, and we are now concentrating on our course. Only a few days are left. So just 1 or 2 submissions. One, a large group from Bhavalpur has already got themselves registers. They have kept the tradition alive. We are very thankful to them. Other people have also sent registrations, but some have not yet sent. So please send your registration forms direct to Kanal Zujaja and along with the drafts or checks of 1,500 rupees. If you require accommodation, you contact Colonel Tariq Rafi and
with your dates and all requirements, whether you require a single room or a shared room, and along with the dates. Colonel Tariq Rafi will look after it. We will try to accommodate all of you, as we have been doing in the previous 2 years. But if there are problems, then we will say sorry. And the principle is first come, first serve base. Third thing is that we would like you to participate in our social activity, which is during the dinner. The trainees at AFIP, they have already made a skit of 15 minutes, very nice humorous skit of 15 minutes. So if you want some activity like this from your institute, you are most welcome. We have 1 hour for that. So if we get some more skits, you are most welcome. The skit may include mimicries, nakal utarna. Mimicry सबसे पहले मेरी बनाएं, फिर बाकी सब की बनाएं, अपने टीचर्स की बनाएं. इंशाल्लाह वो माइंड नहीं करेंगे, कोई टीचर माइंड नहीं करेगा. जाहिर है थोड़ी सी लिमिट्स रखेंगे, तो मिमिक्री कर सकते हैं आप. और मेरी तो बेशक दूसरा मर्जी बनाएं, और बाकी स्किट्स बनाएं. आप बड़े क्रिएटिव हैं, मुझे पता है आप बड़े टैलेंटेड हैं सारे. ये मेरा बहुत एक्सपीरियंस है वर्कशॉप्स कराने का कि डॉक्टर्स बहुत टैलेंटेड होते हैं. अच्छा, तीसरी बात ये थी कि जिसको आप लॉन्ग कोर्स कहते हैं, it is actually short intensive training, SIT कह लें इसको, short intensive training for those who are appearing in the exam or likely to appear in the exam in this year or early next year maybe. So maximum 10 or 12 people we will accommodate for that, and that will start immediately after the course, that is from 15th or 16th May. But if you want to come earlier than the course also, some people have contacted me and requested to come from 8th also. They are most welcome, but they are appearing in the exam. So we have made we will inshallah teach you and give you intensive training during that short period. So these are the few things I wanted to share. Thank you very much. We will dish out the program of next Zoom after this course. We will give you the program, but it will start it on the week starting from 16th May. Thank you very much. Allah Hafiz. Thank you very much.